सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हम सभी को गहरा सदमा लगा है। दुख की इस घड़ी में मनोज वाजपेयी और फिल्म मेकर शेखर कपूर की एक बातचीत खूब वायरल हो रही है। यह वीडियो मनोज वाजपेयी ने ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो चैट में मनोज वाजपेयी कहते हैं कि उन्होंने सुशांत जैसा मेहनती इंसान नहीं देखा था। वहीं शेखर कपूर कहते हैं कि सुशांत की आंखों में मुस्कुराहट में एक सौम्यता थी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। वीडियो चैट के दौरान नेपोटिज्म के सवाल पर शेखर कपूर कहते हैं कि जो लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं वह असल में अपनी ही जर्नी कम कर रहे हैं। इस पर मनोज कहते हैं कि इंडस्ट्री ने हमने सुशांत के साथ न्याय नहीं किया। अंत में दोनों एक साथ कहते हैं कि हमने अपना भाई खोया है। As an actor, I was quite mesmerized in the manner he pulled off Dhoni. Knowing the fact, Neeraj Pandey, the director, is a very good friend of mine. He told me that this boy never played cricket, and he came in, he mastered the craft, and he became Dhoni. He actually became Dhoni. His walk, his talk, his play, everything. He's done it so well, so perfectly well. For me, his contribution is that he's coming from Bihar, coming from a middle class family, from Patna or his grandfather from some district there, and be on top of the game. Like star system that I completely hate. I don't agree with. In the manner the ratings happen, in the manner the trade is, the business is analyzed, and business the statistics are thrown on your face. I don't like it, but still he was on top of that. He was as good as anybody, rather I would say better. And the journey, the journey is something that one should be proud of. I was very proud of his journey. I come from the same state, and I come from a farmer's family, so I could relate to his journey. I could relate to his restlessness. I could relate to all the conflict that he was going through. I somehow felt that he would, whatever the questions that he had, he will find the answers on the way, because this is the way life gives you answers. But I didn't know that the life will be ended so abruptly. Yeah, I know, because answers, there are no definitions. There's no defined answer. And every day that you live, the next day, the answer changes because your question changes. You think you're asking the same question, but you've lived another moment, and your question, the nature of your question changes. Therefore, the nature of the answer changes. And that's what life is all about. Yeah. And I was amazed at we did a session at Goa at IFFI, and we decided that we will keep it no hold barred, और वो quantum physics की बात करता था. Right. और you're right, curiosity इतनी थी, और मैं तो सालों से quantum physics ढूंढ रहा हूँ. Again, quantum physics की कोई आंसर होता नहीं है. Quantum physics में यही कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से आया और यहाँ गया, लेकिन वहां पहुंचने से, यहाँ जाने से पहले वहां पहुंच गया. आप उसको देख सकते हैं, अभी तो यहाँ से निकला नहीं. तो इसके बारे में बात करते रहते थे कि कहाँ मिस्टिसिज्म और कहाँ क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे से जुड़ जाती है. हाउ कैन अ पार्टिकल बी एट पॉइंट बी बिफोर इट्स लेफ्ट पॉइंट ए? तो उसका यही आंसर है कि वो पार्टिकल सब जगह है, जहां आप देखते हैं वो उसी जगह है. सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द होल यूनिवर्स. द होल यूनिवर्स is created in your imagination. जो आप imagine करते हैं वो है. And these are the things he used to constantly dream about, constantly ask me questions about. फिर मैं कहता था चल यार, चल अभी गोरा पे बात करते हैं, let's go back to it. But he was one of the most curious persons I've ever met. Curious. And for an actor, that was amazing. I've never met an actor like that. I've never met a man. और आप बॉलीवुड स्टार्स की बात करते हैं, I agree with you. I wouldn't say the stars, the people, but the system. The system. The system actually does not allow us to be very creative. मैंने तो कभी स्टार्स के साथ काम ही नहीं किया.
जब मैंने बैंडिट क्वीन बनाई थी सब नए थे, और मैंने खास तौर से लोग ऐसे ढूंढे जो नए हों, जिन्होंने अपने आप को स्क्रीन पे ना देखा हो। जो मासूम बनाई तो नसीर और शबाना थे, स्टार्स नहीं थे बड़े। मिस्टर इंडिया बनाई तो अनिल कपूर, श्रीदेवी की एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिर जब अमेरिका गया और लंदन गया, वहां भी केट ब्लांचेट की कोई फिल्म नहीं थी, नई लड़की ले ली। तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है स्टार्स के साथ काम करने का। और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी स्टार्स का ऐसे लगता है कि भाई ये हमारा रथ है, आप हमारे घोड़े हैं, तो कैसे बनेगी फिल्म, कैसे बनेगी। मुझे तो ऐसे लगता है जो सुशांत हमेशा करता था, वो सेट को पूछता था, he would worship the set, he would worship the idea कि ये एक स्पेस है, this is a space in which हम आकर रिहर्सल कर रहे हैं। तो पहले he used to bow down to that stage कि I am yours, you take me, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, I am vulnerable, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं रोल के सामने, मैं फिल्म के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वो अदा कर रहा हूँ जो आपने मुझे दिया है, वो मैं बन रहा हूँ। You know, पता नहीं मैं क्यों सुन रहा हूँ लोग एरोगेंस की बात कर रहे हैं सुशांत के बारे में। मैं तो देखता हूँ, लेकिन आई नेवर मेट समबडी सो हम्बल। इतनी ह्यूमिलिटी थी उसमें, इतनी ह्यूमिलिटी थी उसकी स्माइल में, ह्यूमिलिटी थी उसके बस आंखों में। मैं जो उसकी आंखें देखता हूँ तो इट इज अ चाइल्डिश ह्यूमिलिटी। वो शायद वहीं से है जहाँ आप कह रहे हैं दोनों बिहार से आए, छोटे छोटे शहरों से या गांव से आए, and he came here with that humility. So I just would like to remember him. Humility, talent क्या होता है यार? एक डायरेक्टर का टैलेंट क्या होता है? टैलेंट तो वो होता है जो आप पाए, टैलेंट तो वो होता है जो आप पीछे छोड़ पाए, टैलेंट तो वो होता है जो कहे कि ये मैं नहीं कर रहा, ये हो रहा है। और जिस दिन आप कह सकें कि ये तो हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, मैं तो केवल किसान हूँ, गार्डनर हूँ, मैं पानी दे रहा हूँ, ऊपर से धूप आ रही है और पौधा उग रहा है। क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए, है ना? मैं छोड़ जाऊं, मैं नहीं हूँ। जिस वक्त आप कह सकें एज एन एक्टर, जो आपने किया बैंडिट क्वीन में, बैंडिट क्वीन इसलिए आज याद रखते हैं लोग, इसलिए आज याद रखते हैं कि आप सब लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया, सब ने अपने आप को छोड़ के कुछ और बन गए। आप नहीं रहे, कैरेक्टर भी इमर्ज हुआ। ये भी नहीं कि हमने बैठकर डिसाइड किया था ये कैरेक्टर ऐसा होगा, ये होगा। अभी मुझे याद है जब सीमा पहली बार आई मेरे पास, मुझे कुछ पता नहीं था बैंडिट क्वीन कैसे शूट करनी है। तो सीमा आई और मैं बहुत बड़ी थिएटर एक्ट्रेस थी वो, अब मैं कुछ जाना पहचाना डायरेक्टर था। तो हमारी पहली मीटिंग हुई तो उसने असली सवाल पूछे कैरेक्टर के बारे में, ये कैसे होता है, ये इस कैरेक्टर का हाई पॉइंट क्या है, इसका लो पॉइंट क्या है, इसका ग्राफ क्या है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था सर की फिल्म कैसे बनाऊं। तो मैंने सीमा से कहा, मैंने कहा सीमा एक काम करते हैं, तुम घर जाओ, कोई 1.5-2 पेजेस लिख के लाओ कि तुम क्या समझते हो कैरेक्टर के बारे में। तो समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। 250 लोग देख रहे हैं आपको, सर शॉट क्या है, आपको पता नहीं शॉट क्या है, तो आप एक्टर के पास ही जाते हैं, अरे भाई तुम क्या समझते हो शॉट क्या होना चाहिए। तो आपने दूसरे को प्रॉब्लम दे दी और सोच रहे हैं, राइट। तो ऐसे मैंने सीमा से कहा तुम लिख के ले आओ। उसने 1.5-2 पेजेस बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखे। तो मुझे समझ में आ गया कि फिल्म कैसे बननी चाहिए। ये बैंडिट क्वीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने सीमा से कहा ये क्या लिखा आपने, एक काम करो 1.5-2 पेजेस में अपना कैरेक्टर लिख के आओ। कहती मैं अपने आप को 1.5-2 पेजेस में कैसे डाल सकती हूँ। तो मैंने कहा ये फूलन देवी जिंदा है, ये भी तो औरत है, ये भी है। 1.5-2 पेजेस में अगर आप अपने आप को नहीं डाल सकते तो किसी और को क्यों डालने की कोशिश। तब मुझे समझ आ गई, मैंने एक नया तरीका सीखा फिल्म बनाने का कि छोड़ दो एक्टर्स को, कैमरा को, सबको छोड़ दो और फिल्म बनने दो। जैसे खेत को उगने दो, एक फूल को ब्लूम करने दो, ऐसे करो। और जब मैं सुशांत से मिला मुझे ऐसे लगा कि ये एक्टर भी वैसा ही है,
ये सब छोड़ने को तैयार है, अपने आप को छोड़ने को तैयार है, सबको छोड़ने को तैयार है। लेकिन फिर बाकी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये सबसे बुरी चीज ये हुई कि वो फिल्म बनी नहीं, वो मुझे सुशांत के साथ काम करने का चांस ही नहीं मिला। नहीं तो उसकी वजह से वो पानी कुछ और ही बन जाती थी यार, उसमें एक जान आती थी। जान कहाँ से आती है? जान तो ऑनेस्टी से आती है। तो फिर जब मैंने सोन चिड़िया देखी तो मैं आई जस्ट सॉ ऑनेस्टी एवरीवेयर इन योर परफॉर्मेंस, इन सुशांत परफॉर्मेंस। कोई झूठी चीज नहीं लगी मुझे। तो जब आप कह रहे हैं ना कि सामने जो एक्टर दिख परफॉर्मेंस में ही देख रहा था, उसके परफॉर्मेंस देख रहा था, एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को। अक्सर स्टार तो ऐसे ही करते हैं ना यार, वो जो शॉट देते हैं कहते हैं आगे से हट जाओ आगे से कैसे हट जाओ, आपके सामने तो दुनिया है, अब कैसे हट जाओ। So I think मैं आपको tell the audiences what kind of what kind of नहीं, अब जो लोग हम लोगों को लेट ज्वाइन किए, मैं सिर्फ उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं सुशांत को। मेरी और शेखर जी की बातचीत पहले होनी थी, 2 दिन पहले। फिर उसके बाद कल हमने तय किया था कि कल हम बातचीत करेंगे एक्टिंग के बारे में, क्राफ्ट के बारे में। फिर ये हादसा हुआ और ऐसी घटना घटी तो हमने सारा कुछ स्थगित कर दिया। फिर हमने डिसाइड किया कि आज के दिन हम सुशांत के नाम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उसके बारे में अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है, वो मेरे ख्याल से उसके साथ न्याय नहीं है। वी आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू द टैलेंट, टू द पर्सन दैट ही वाज। I think this is the time that we should all grieve by really remembering the person that he was, by really acknowledging that the actor that he was, and sit down and think as to what all he's done in such a young age for the industry and for the people that he represented. I think I will ask this question to you, Shekhar. In your view, what was his contribution? I mean, at the age of 34, 35, he left us. He left his family grieving, mourning. But at least we can actually, I can ask you, because since you could not direct him, you've done preparation with him. You've known him very closely as a person, also as an actor, since he was preparing for a role. And also you used to look at him from a distance and his career from a distance. What do you think was his contribution to this industry and to the world that he has come from? I think सुशांत ने यह जो फिल्में की हैं, वो एक फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें लोग ये नहीं कहा कि जैसे आप अभी कह रहे थे धोनी के बारे में, धोनी लगा। So his contribution is a sense of reality that he brought to his films, and he was in a way a star. Star तो बन गया था वो, but देखो स्टार दो होते हैं। स्टार वो जो एक चीज बार बार दोहराते रहते हैं क्योंकि थिएटर में तालियां बजती हैं। दूसरा जो एक्टर स्टार होता है उसका काम बड़ा मुश्किल होता है। उसका काम कि वो तालियां बजे लेकिन कैरेक्टर्स पिछले कैरेक्टर से अलग लगे, सुशांत दिखाई ना दे, उसको स्टार कैसे बनाओगे? That's his contribution. He was on his way to reach a peak that you have now started to achieve. That stardom, और आपने जो फैमिली मैन वगैरह जो आपने किए, और बैंडिट क्वीन और अलग अलग फिल्में जो आपने की, your stardom is not based on look, I am Manoj Bajpayee something. Your stardom is based on the audiences completely getting in tune with the character. तो ये सुशांत की at this young age उसकी contribution है कि आप जो फिल्म देखो उसमें ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर देख रहा है, आपको सुशांत नहीं देख रहा। और बहुत आगे जाना था इस लड़के में, बहुत आगे जाना था। ठीक है। What is it that मतलब ये क्या चीज है? मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी बात हिंदी में भी कर लीजिए आप। मैं हिंदी में सिर्फ पूछना चाहूंगा आपसे कि वो
वो क्या चीज है पर्टिकुलरली जो आपको परेशान कर रही है इस समय? After his funeral is done, and I'm very sorry for, first of all, I think both of us are not in Mumbai and could not go to his funeral. I'm three of our industry people funeral, which is so sad, so sad. But coming to Sushant, this is what I want to ask you कि आपको क्या चीज है जो परेशान कर रही है अभी सुशांत को लेकर? परेशान तो वही चीज कर रही है कि जो मैंने नहीं किया वो परेशान करोगा ना। दो चीजें हैं। चलो, पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे सुशांत के साथ, नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। कुछ और फिल्म कोशिश करके बना लेता, वो नहीं किया। मैं बाहर चले गया, हिंदुस्तान से बाहर चले गया, गुस्सा, नाराज हो गया मैं गया। और दूसरा कि हमेशा ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने से मैं सुशांत को नहीं मिला, फोन वोन करता था कभी, तो वो जो हमने नहीं किया वो हमेशा याद आता है। घर चले जाता, बैठ जाता, कभी सुशांत के साथ बैठे कोई बातचीत करने की जरूरत ऐसा नहीं लगता थी अब क्या बात करें। अगर फिल्म की बात या एक्टिंग की बात या कहानियों की बात नहीं होती थी तो क्वांटम फिजिक्स की बात होती थी। इतना नॉलेजेबल था वो। नहीं तो वो अपना टेलीस्कोप लेके बैठ जाता था, दिखाता था। खैर, बम्बई शहर में टेलीस्कोप इतनी पोल्यूशन थी तो ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। तो जो आप पूछ रहे हैं मनोज, वो यही है, याद तो वही आता है कि जो नहीं किया एक भाई की तरह। यही होता ना, फैमिली की, मैं क्यों नहीं था वहां, मैंने क्यों नहीं कॉल फिल्म की, मैंने क्यों नहीं फोन किया, मैं क्यों नहीं मिलने गया, ये सब याद आता है अभी तो, है ना। तो दुख आता है कि नहीं किया, वो हमेशा ऐसे होता है। दुख आता है, दुख हो रहा है, थोड़े दिन के बाद फिर बैठ जाएंगे इकट्ठे, हम दोनों बैठेंगे, फिर सुशांत की पिक्चरें देखेंगे, तो कहेंगे देखो यार ये देखिए इतना कमाल कर किया इसने, ऐसा भी कमाल कर दिया उसने। वो हमें करना चाहिए और सुशांत की याद ऐसे करनी चाहिए। सुशांत की सारी बातें तो मुझे याद हैं, बहुत गहरी बातें करता था और हंसता खूब था। फिर हमने कुछ साथ में कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसके सब वीडियोस हैं जी। तो ठीक है यार, अब लेट्स जस्ट रिमेम्बर। एक बार फिर मैं भी बोला, आपने बोला कि तो कमेंट्स भी देख रहा हूँ, ये हमारा इज द रीजन ये करने का कि सुशांत को एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग याद करो। अल्टीमेटली ये जो ड्रामा ऑफ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा था उसके मन में, कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये सब बातें बह जाएंगी नदी की तरह। जैसा होता है ना, नदी साफ चल रही है तो उसमें कुछ चीजें आती, वो बह जाएंगी तो साफ पानी दिखाई देगा। वो जो साफ पानी है नदी का, जो नीला पानी है, वो सुशांत दिखाई देगा। फिर मैं जो कल से जो मैं अपने सर, वो आपका नेटवर्क लगता है कि थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, थोड़ा आपका पिक्चर हेजी हो रहा है। मैं पहाड़ों पे ठीक कर लीजिएगा जरा जी। मैं कल से जो बहुत परेशान, आपसे बात भी हुई थी, तो काफी उदास और वेरी हार्ट ब्रोकन। आई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तब्बू से बात कर रहा था, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि यार ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब वापस जाएंगे तो ये तीनों लोग आ जाएंगे whom we lost when we were not there, you know। कुछ इस तरह से इस कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आई एम hallucinating about all of these incidents that has been happening, and for Sushant too. I mean, till the evening, when after I spoke to you also, till the evening I could not believe कि ये सच है। और फिर शाम को मैं बहुत ही खोया रहा, and my family kept on asking me, where are you, though they know that I was fairly disturbed. My wife said that it's his image is not living,
this incident is not leaving my mind, though she's not connected. What is it about this incident that is making people so angry? I'm seeing Twitter, Instagram, social media, people are angry. Why they are angry, Shekhar? Why they are angry? There must be a reason why they are angry. There can't be one thing. They must be saying one thing, but there's a reason behind this anger. What is this anger coming from? I think the anger is coming from the recognition of people like you who are now showing to the world that this stardom that we imagine stardom, जैसा हम सोचे stardom है, वो असली stardom नहीं है. और वो क्योंकि वो असली stardom नहीं है, तो गुस्सा इसलिए आ रहा है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं फिर चांस मिल रहा ऐसा जैसे आपको मिला. ये एक गुस्सा है जो मैं समझता हूँ आ रहा है. बट व्हाट यू आर फीलिंग, कल रात को मैं जहाँ हूँ वहाँ काफी लोग थे और सब बात कर रहे थे सुशांत के बारे में, और मैं चाह रहा था सब चले जाओ थोड़ी देर. मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा था कि सब चले जाओ. तो जब सब गए तो फिर बैठ कर खूब रोया. किसी के सामने नहीं रोने लगा, फिर खूब रोया मैं रात को. फिर गुस्सा आया कि ये ऐसा क्यों हुआ सुशांत के साथ. गुस्सा आता है यार, दुख होता है तो गुस्सा भी आता है. जब दुख होता है तो किसी को ब्लेम तो करना ही पड़ता है ना जी, क्योंकि नहीं तो ब्लेम अपने आप पर लेना पड़ता है. हमारी आदत ही है ये कि अगर किसी और को ब्लेम नहीं किया तो फिर वो ब्लेम अपने आप खुद पे आ जाता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ कि और नहीं किया और कोशिश नहीं की. अगर इतना ही बड़ा टैलेंट है जितना हम दोनों मान रहे हैं, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? क्या उस समय जब ऐसा हुआ पानी नहीं बनाई उन्होंने, तो ठीक है भैया पानी नहीं बनाई, हम कुछ और ही बना रहे थे नहीं. लेकिन ऐसी सब बातें आती रहती हैं मन में, एक दिन बैठ जाएंगी. वो कहता है ना, मैं अंग्रेज में बोलता हूँ, मेमोरी इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड. मेमोरी इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड. कि वो जो हमें याद आती हैं प्यार की बातें हैं, कि जब वो बातें हुई थी तो प्यार की होती हैं, वही बातें जो प्यार की थी वही मोमेंट्स अब दुख के हो जाते हैं. तो ये कैसे होता है कि प्यार दुख में बदल जाता है? और जब प्यार दुख में ऐसे बदल जाता है, वही इंसिडेंट, जैसे आपने स्नैपशॉट ले लिया, उसका मूवी ले लिया, हंस रहे दोनों बैठे, अरे कितना प्यार है, कितना प्यार है, अब दुख है. तो ये जो प्यार से दुख होता है, इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है यार. इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है. तो ये जो दुख है, ये आहिस्ते आहिस्ते फिर प्यार में बदल जाएगा, फिर गुस्सा कम आएगा, और फिर सुशांत की जो यादें हैं अलग होंगी, पर प्यार भरी फिर होंगी. अभी तो दुख हो रही हैं, फिर प्यार भरी हो जाएंगी. मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो आम जनता को आ रहा है, उनको एक ऐसा हीरो दिखा था सुशांत में जो उनके बीच से आया था, और सडनली जो उनको लग रहा है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, जो कहीं ना कहीं उनको वो एक होप दे रहा था, आशा दे रहा था कि उनके बीच का लड़का अगर इतनी दूर जाता है और इतनी ऊंचाई पे जाता है तो उनके लिए भी वो होप है. और सुशांत का अचानक इस तरह से चले जाना, कहीं ना कहीं उनको इस बात से वो बड़े बहुत ज्यादा रूठ गए हैं बहुत ज्यादा. वो भी दिखाई दे रहा है जी, बहुत ज्यादा रूठ गए हैं, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा इसी बात का आ रहा है, और बहुत ज्यादा दे आर शॉक्ड लाइक ऑल ऑफ अस, दे आर शॉक्ड. सो द एंगर इज, आई थिंक, आल्सो it's a way of emoting, way of grieving, way of showing way of showing their own loss. So but Shekhar, before we wrap up, let's talk on one or two things. First of all,
क्या है सुशांत में, क्या देखा था आपने जो हम एक्टर्स को अपने अंदर इनवाइट करना चाहिए? क्योंकि हर एक्टर के पास में एक यूनिक चीज होती है। बिल्कुल है ना, मुझे हमेशा लगता है कि एक एक्टर जो अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी जर्नी के बाद वो एक ऐसी चीज लेके आता है जो बाकी एक्टर्स को मिल सकती है, वही चीज उसको यूनिक बनाती है। देखो, सुशांत को जब मैंने पानी में कास्ट किया था तो मैंने दो उसकी चीजें देखी थी। एक तो काइपोच है जी, और जी, दूसरा उसने एक पेप्सी का ऐड किया था। हाँ, दोनों देखा जी। दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों में एक रेस्टलेसनेस था कि ऐसा लगता था कि जैसा होता है ना, एक स्प्रिंग आपने ऐसे करके बंद करके रखा है कि ये जो आदमी है ये कभी भी उछल जाएगा। इससे अनप्रिडिक्टेबल है ये, बिल्कुल जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी जो दोनों फिल्मों में थी कि यार पता नहीं अभी क्या कर, पता नहीं कैसे क्या बोल देगा, पता नहीं क्या कर देगा। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, अगर ये स्क्रीन पर आ जाए, जो मुझे गोरा में चाहिए थी, जो गोरा कैरेक्टर पानी का, बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल सुशांत। तो एक तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही क्रिएटिविटी होती है, जिंदगी ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही क्रिएटिविटी होती है। और दूसरा, उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में बचपना था। एक तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है बहुत, एक किस्म की, यार मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं नाराज हूँ, यार पता नहीं कब आदमी ये कब गन उठा के किसको बना दे। दूसरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में एक इनोसेंस था, एक बचपना था। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, पता नहीं कब कुछ कर देगा, ये बैठा है ऐसे तो करके कुछ कर देगा, उसमें एक बचपना और उसमें एक मासूमियत, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और बचपना, ये तीन चीजें उसमें मैंने देखी और मैंने कहा कमाल का है ये कहाँ से मिल गया मुझे, आई एम लकी। राइट। काइपोचे में बहुत ज्यादा ये चीज दिखी थी उसके बारे में। एंड दिस इज व्हाट people got so attracted to, though Rajkumar Rao was brilliant in it and Amit Sir was equally good, but these are the qualities of Sushant attracted everyone towards him. दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा हूँ वो जानना चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गुस्सा है, लेकिन मैं दूसरी चीज ये इसको ना, वी हैव टू लुक एट इट इन पर्सपेक्टिव, एंड देयर इज नो बेटर पर्सन देन यू टू रियली पुट अ लाइट on this word called nepotism. What is your take on it? यार मैं तो कहता हूँ, जो लोग, अगर कुछ लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं तो वो अपनी ही जर्नी को कम कर रहे हैं। जी सही है ना, कि भाई आपके अपनी एक जर्नी होती है, एक फिल्म मेकर की, एक प्रोड्यूसर की, एक डायरेक्टर की। तो अगर आप कहें कि हमारे पास सिर्फ नेपोटिज्म से ही जा रहे हैं कि कोई किसी का बेटा है, बेटी है, उसी को लेना है, तो प्रॉब्लम तो आपकी हो जाएगी कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हम तो बात करते हैं ना दूसरे लोग कैसे बढ़ेंगे, तो मैं तो कहता हूँ आपकी ही फिल्में कम हो रही हैं, आपकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, आपकी फिल्में बुरी हो रही हैं अगर आप नेपोटिस्टिक हो रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई लड़का लड़की दिख जाए जो है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का नीस नेफ्यू, जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम है यार, नेपोटिज्म। और आप देखिए, आप निकल आए, सुशांत निकल आया, कितने लोग अब निकल आए। तो अब देखिए वो कितनी लड़ पड़ती है सबसे, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल है। जी है कि नहीं? बिल्कुल। वो भी तो वो छोटे, वो मनाली से कहीं छोटे से गांव से आई है। हाँ, मनाली से आई है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जो छोटे शहर के जो लोग हैं ना, छोटे शहर के जो लोग हैं, इनमें दम ज्यादा है, इनमें जान ज्यादा है। बम्बई के लोग अच्छे खासे खाते पीते घर के जो लोग हैं, उनमें इतनी जान नहीं है, इतनी लड़ने की ताकत नहीं है जितनी छोटे शहर के लोगों में है। हम सिर्फ फिल्मों में नहीं देख रहे, दूसरे इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं।
अब देख रहे हैं जी कि जी आईआईटीज में जो छोटे शहर के लोग जाते हैं वो सबसे बढ़कर आगे निकल जाते हैं। जी जी अब देख कर चलिए जी। कितनी बात छोटे करेंगे, शहर तो सर, जितनी और बात करेंगे जर्नी, सुशांत तो उतनी ही कम है। जी जर्नी, जो आपने छोटे शहर की बात की, इसके साथ मैं खत्म करूंगा कि जर्नी जो छोटे शहर की गांव के लड़कों में होती है, एक तो जब अब बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर में एक जो सपना आता है, तो वो उसको डर लगता है कि हाँ क्या वो सपना देखे कि नहीं देखे। पहले तो इसी बात से डर लगता है उसको हाँ क्या हाँ ये अफोर्डेबल है ये सपना देखना। हाँ फिर उस हाँ सपने को चेज करने के लिए रास्ता बनाना, और वहां पे समय लगता है, और फिर उस रास्ते पे निकलना। देन यू आर, व्हेन यू गो ऑन अ जर्नी, हाँ and you don't know how long this journey is going to be, you know and there is nobody to really tell you which road will take you where. So you are like a traveler who has no map, you know yeah who has no map in his yeah hand. So yeah he's only asking people who are meeting him on his way, and he's asking them about the next stop, and हाँ he's सही fully है trusting the person who's showing him the way at that point of time. Uh, yeah sometime yeah sometime some travelers are very stubborn and very thick-skinned. Some travelers are very fragile. You know, they yeah can't take it when they are lost. Some of them, yeah started again from the zero. They have हाँ that resolve. All I would say, Shekhar, that thank you very much for really offering, for really, coming up this idea of this kind of a Shraddhanjali to our dear Sushant, and really coming over to talk about him, all good things about Sushant, and what all we should learn from his journey and from his craft and from his yeah humanity, from the person that he was, all the good things yeah that we can remember about him. yeah And yeah also, yeah we should not forget that this man started from nowhere and reached on the top. So yeah his journey is yeah going to बिल्कुल be सर quite inspirational for every one of us. What do you say? You wrap it up. सुशांत को तो सब याद रखेंगे, जैसे जो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं और जिनकी जिंदगी बहुत ऐसे छोटी उम्र में कट जाती है, तो उनको तो हम बहुत याद, जॉन कैनेडी को याद करते हैं, हम जेम्स डीन को याद करते हैं, हम अपना इसका हीथ लेजर को याद करते हैं। इसी कैटेगरी में हम याद करेंगे और इसी कैटेगरी में हमको याद रखना पड़ेगा। ये सब बातें जो ड्रामा है और सुसाइड क्यों किया और डिप्रेशन की बात, एक बार हमको डिप्रेशन की बात एक और बात करनी चाहिए कि ये क्या सही लोग कहते हैं कि हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी में डिप्रेशन ज्यादा होता है। हम तो पुश करते हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिक बना देता हूँ जब फिल्म बना रहा हूँ, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसकी फिर एक बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सवाल आ रहे हैं जी और प्लीज तो उसके बारे में करनी चाहिए। Shed a light on it. Yeah, shed a light on it. This is our program, sir. This is not a TV channel where we can just go on talking about unnecessary things. Next time we'll talk again. We'll set up another call and we'll talk really about really what is it that depression is. Manoj, been pleasure. So what do you want to tell? What do you want to tell? बात करने में बहुत मजा आ रहा है। What do you want to tell? What do you want to tell his family who's grieving right now, Shekhar? I want to tell his family that we loved him as much as they did, and we are as shocked, grieved, sad, hopeless. We are as misunderstanding this whole thing as they must be. कि ये क्यों हुआ, वैसा हम फील कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हमको भी वैसा ही लग रहा है जैसे उसके पेरेंट्स को लग रहा है, उसकी फैमिली को लग रहा है, यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम वैसे ही रो रहे हैं जैसे वो रो रहे हैं।
तो आई वांट टू नो, जी आई बिल्कुल वांट देम टू नो, ये जाने कि पूरी जो लोग असली लोग हैं ना, जो फिल्म देखते हैं, लोगों को स्क्रीन पर देख पाते हैं और जान पाते हैं, जांच पाते हैं, वो लोग भी इतना ही रो रहे हैं जितना उसके फैमिली रो रही है। जी बिल्कुल। अब आपने बिल्कुल सही कहा, हम उतने ही दुखी हैं, हम उतने ही रो रहे हैं, हम उतने ही स्तब्ध हैं और शॉक्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, और हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में बिल्कुल साथ हैं। उन्होंने अपना बेटा खोया है और इस दुख की घड़ी में हम सब के सब उनका हाथ पकड़े हुए हमने हैं। अपना हम भाई भले ही खोया, वहाँ नहीं, हमने अपना भाई खोया है, अपना साथी खोया है। इसी के साथ हम इतना कहते हुए कि उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, हम इस बातचीत को यहीं खत्म करेंगे। शेखर, थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।